Assalamu alaikum, everybody. Today we have invited our guest from National College of Arts. She's the head of department over there, and her name is Miss Meher Bano Khattak. And hello. She did her bachelor's in design from National College of Arts, and then afterwards she moved into um design market actually, but I think again she went into she had a passion for teaching, so she thought that she will go into teaching, and I think that's why she did her degree in education from Allama Iqbal. And afterwards I can see that you have said that you did computational arts from Goldsmith University, London. जी बिल्कुल We'll be talking about that, what is computational art, and that would be very interesting for our students to know about that. But she has also contributed to different publications, and she has exhibited both nationally and internationally. About her work, according to her, her work intersects generative design and minimalistic style that spark off new and unexpected meanings. Her work has more of a modern setting, inspired by the complexity and intricacies of visual communication design. As intermittent forms become transformed through boundaries and experiences, her work mainly revolves around day to day personal experience and narratives. The viewer is left with the testament of the possibilities of their own interpretation. Will be interesting in that part as well, because here the girls are from moving image as well. So there are different girls from graphic design, video productions, and game design. So they will all be interested in like how that settings are changing our personal experiences, and how the new kind of meaning can be generated through that, and how new kind of narratives can be formed because of that. So I'll be asking you afterwards, but before that, would you like to say something about your educational background and then your career in design? all right. Assalamu alaikum everybody. I'm Meher Bano Khattak. As Ma'am Zareen has introduced me very nicely, thank you very much, ma'am. um, जब I started off with graphic designing. ठीक है, graphic design, when we graduated, computer was very new, and that technology was very new. So most of our work was very static. And with the passage of time, अब जो मैं काम देखती हूँ बच्चों का, we have so much of technology, and we Exactly. have all those lineups जो अब change हो गए, जहाँ पे हम जाकर एक एक चीज़ को photograph करते थे, वहाँ पे बच्चे अब illustration कर लेते हैं, and they get the meaning of it. And Exactly. most of the portfolios that I'm looking at, and जो juries में आजकल कर रही हूँ, I see that illustration has become very yo in जिसको आप कहेंगे, ठीक है, it's Exactly. become easier as well. So when I started my journey, it was very simple, and of course we all have this artistic touch with us. So what I'll just show you is I'll just go through this कहते हैं ना portfolio of mine on Facebook. Okay. ठीक है, so नजर आ रहा है आप लोगों को? G, we can see it. All right. So if I see the very first visual, okay, I've always been into text, but never got the chance to do that. Then with the passage of time, jis tarah I said, ke, I work with the minimalistic work. These are the kind of things that I kept doing, apart from my publication and apart from my job. Okay. ठीक है. So most of these works were exhibited, and they were for the purpose of कि आप job तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी satisfaction के लिए this is what I used to keep doing. Very nice. So as you will guys see that one way or the other, थोड़ी सी thought process जो है वो बंदे की खुद automatically change होती है.
So I find these kind of platforms जहाँ पे मैं अपना portfolio show करती हूँ या portfolio दिखाती हूँ कि किस तरह वो changes आते हैं. So now I'll scroll zara quickly. Acha, along with This is a that, you text? will. Yeah. Gee, this is text. Very nice. So along with that, that's what I'm saying. कि text has always been there with me, ठीक है? And with the passage of time, जिस तरह उर्दू text और अभी भी मैं अपनी students को भी बहुत ज़्यादा उर्दू text की तरफ लेकर आती हूँ कि we can play along with calligraphy बहुत ज़्यादा हम खेल सकते हैं, ठीक है? Exactly. और हम किस तरह उर्दू के text को typography की तरफ लेकर आ सकते हैं जहाँ पे हमारा hold आ जाता है as graphic designers. हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, हम उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते. Exactly. ठीक है, ऑलराइट. सो these are the experimentations that I just kept doing. फिर बीच में I was doing my masters क्या कहते हैं computational arts. So I will come to that later. ये अब आगे आगे जो आप पोर्टफोलियो ज्यादातर देख रहे हो ये computational arts से रिलेशन में आ रहा है. All right. So basically, again, I will say that once I graduated from National College of Arts, I went into the advertising world. Advertising world was, of course, very completely different. You had to work according to what the client was asking you to do. But along with that, जो एक आपकी artistic urge होती है, वो I kept alive with myself. And जब मैंने अपना इलामा इकबाल से जब मैंने मास्टर्स किया था, that was completely theory based, Zareen. अच्छा. And that was so tough. क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी की आदत हो गई थी, ठीक है, हमें वर्डिंग की आदत हो गई थी. बिल्कुल. So that was, but an experience was good. I realized कि how theory, you know, captures a person. Exactly. और आप किस तरह उसमें आ सकते हो, and that is where I realized that for a designer, research is very important. Exactly. You know, and we should have our archives, we should have our portfolios, you know, in that manner. Okay. I'm sorry, I might be going here, there, and everywhere. No. It's very clear that how did you progress. और मुझे लगता है कि वो जो अर्ज है, बिकॉज हम बात कर रहे थे अब्दुल जब्बार से, ही ऑल्सो सेड कि वो मार्केट में जो है ऐसा है कि ऑडियंस या जो आपका क्लाइंट कहता है यू हैव टू डू दैट, इसलिए उन्होंने शिफ्ट किया आर्ट की तरफ. और मे भी शायद एनसीए में भी ऐसा है कि जब हम ओवरलैप करते हैं फाइन आर्ट्स को, डिजाइन को, आर्किटेक्चर को, जहाँ फाउंडेशनल कोर्स में, तो हम एक दूसरे से इंस्पायर भी बहुत होते हैं. तो इसलिए हमें एक एक्सपोजर तो होता है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे उस डिग्री में ऐसा है, तो वी गेट इंस्पायर्ड बाय ऑल दीज डिसिप्लिन्स और ना जो भी वहाँ काम हो रहा है. मैं इस पे यही पूछना चाहूंगी कि जिससे बिल्कुल ऐसा है कि when we were graduating, that was the time when we saw the influx of new media technology. That was the beginning of it. और उसकी वजह से हमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो था, तो एज अ डिजाइनर या एज एन आर्टिस्ट वी आल्सो हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर दैट मीडियम. डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा. और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यू डिड masters in computational art, so people are not aware of that degree. What is that about? And did you learn programming in that? I want to know that. Yeah. How come that happened? Because in an artist, you are never interested in programming. You know, this is the exact journey, the way you said, कि हमें exploration of programs करने का बहुत शौक है, ठीक है? So 2012 में, when 12-13 में, when I was doing my masters, ठीक है, all these open university courses या open courses जिनको हम कहते हैं MOOCs, वो बहुत introduce हो गए थे, ठीक है? So I used to go to every course and see कि ये क्या करते हैं, ठीक है? वहाँ पे I did get in touch with the open framework program, ठीक है? And it was technically very difficult for me to understand. It's exactly the same way कि मुझे AutoCAD हमारे लिए designers के लिए खोल दो. Exactly. I see it. So it was very difficult, but I did start off from there. ठीक है? I did realize कि यार, you know, this is something
which is coming into the market and which is going to be the next future. So computational arts, yes, definitely I had to do programming, लेकिन थोड़ा सा मेरा टच बेस हुआ था प्रोग्रामिंग के साथ. ठीक है. ठीक है. I was aware कि how processing program है एक, ठीक है, how that is encouraging and supporting the visual artist people कि वो अपना काम आगे लेकर आए. ठीक है. ठीक है. So definitely I did learn programming, लेकिन definitely for everyone I do say, अभी भी मैं अपने students को कहती हूँ कि बेटा जो भी प्रोग्राम नया आए, ठीक है, must explore. बिल्कुल सही है. बिल्कुल must see कि इसकी possibilities क्या हैं. एग्जैक्टली. प्रोग्रामिंग में आपने कौन सी कोई लैंग्वेजेस आपने उसमें सीखी, जैसे C++ या बाकी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होती हैं, या फिर और तरह की लैंग्वेज? व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस यू लर्नड एट दैट कोर्स? जो हमें कंप्यूटेशनल आर्ट्स में उन्होंने प्रोग्राम सिखाए थे, दैट वाज ओपन फ्रेमवर्क्स, व्हिच इज अ फ्री रिसोर्स का हमारा है, प्लेटफॉर्म है, एंड देन प्रोसेसिंग. अच्छा. फिर इसमें कोई फर्क ये है क्या, मतलब अब पर्सन लाइक मी कांट अंडरस्टैंड कि ये है क्या? दे आर C++, दे आर C++. हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी कि but just give me एक second. I'm sorry, I'm going to share my whole screen. ठीक है. All right. So ताकि आपको मैं एक व्यू करा दूं कि क्या है, अगर वो खुल जाए तो. हाँ, नहीं, that would be nice. So this is processing, guys. अच्छा. It's completely, अगर आप देखें तो it is based on C++. It's talking about language जो कि बहुत डिफिकल्ट होती है बाज़ दफ़ा आर्टिस्ट के लिए, यू नो, डिजाइनर्स के लिए. ठीक है. और इसमें कैलकुलेशंस वगैरह आप जब देखते हो, अच्छा इसकी अब फॉर एग्जांपल आउटकम क्या आती है. ठीक है. इसको जब मैंने प्ले किया प्रोग्राम को, सो इसकी आउटकम ये है कि आई कैन, यू नो, माउस के साथ मैं अपनी जो विजुअल डिपिक्शन है वो कर सकती हूँ. ओह वाओ, जबरदस्त. ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है, कि इसको हम किस तरफ लेकर जा सकते हैं. आई हैड डिस्प्लेड दिस वर्क इन PNC एज वेल. ठीक है. बट वो माउस इंटरैक्शन के साथ नहीं था. दैट वाज लाइक अ वीडियो दैट वाज प्लेइंग इन ऑन इट्स ओन. ठीक है. सो इट्स एन इंटरैक्टिव काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म. इंटरैक्टिव की तरफ भी हम लेकर जा सकते हैं, और हम इसको एज स्टैटिक ग्राफिक्स भी लेकर जा सकते हैं. अब ऑफ कोर्स इसकी बहुत सारी वही मैं बताने वाली हूँ कि जब हम while we were studying, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक टच डिजाइन एक और प्रोग्राम था, वो भी आ गया था. ठीक है. एंड देन वी हैड एंड्रॉयड और प्रोग्रामिंग के जी आप अपने मोबाइल पे कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो. अच्छा. ठीक है. So this one is completely not responsive. This is on its own. This is what is known as generative design then. ठीक है. Very interesting. So how can this be used in mainstream graphic media या advertising? या उसमें किसी तरीके से यूज हो सकता है? You think that it can only be exhibited in the exhibition places? No, it can't be just that. For example, अब I'm sorry, मैंने screen share stop कर दी, but I'll show you something. Oops, sorry. We had an exhibition, London Design Biennale 2018. ठीक है. उसमें we had a pavilion, Pakistan Pavilion उसका नाम था, and उसके लिए we did work like this as well, कि हमने उसको exhibition में डाला. We had two things, two factors इसमें हमारे पास थे. हमारे पास एक वीडियो प्ले हो रही थी पीछे, ठीक है, और एक इंटरैक्शन हो रहा था. ठीक है. You guys will see this Behance पे पड़ा हुआ है. ठीक है. ठीक है. और कंप्लीट एक वर्किंग थी. अब ये वाला जिस तरह एक काम है, दिस इज अगेन वही बात है, आपकी बात सही है कि आप सिर्फ एग्जीबिशन के लिए इसको काम कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज ऑल्सो डन बाय प्रोसेसिंग.
ठीक है, एंड दिस वाज फॉर द पर्पस ऑफ एन एग्जीबिशन. जरीन, बात यह है कि वी कैन change these things. ठीक है, how can we change this? For example, sorry, जब आप एक प्रोग्रामिंग की तरफ आ गए हो, ठीक है, अब आप देखो आपका जो डिजाइनर है वो 3D मैक्स भी सीख रहा है, ठीक है, ब्लेंडर भी सीख रहा है, ठीक है, हमने प्रीमियर भी सीखना शुरू कर दिया है, जहां सिर्फ हम पहले फोटोशॉप करते थे. ऐसे ही है. ठीक है, सो आप इस थीम को, आपने अगर आइडिएशन लेकर आए हो कि यार मैं इस तरह का एक फील्ड बनाना चाहता हूँ पीछे, ठीक है, कि जिसके आगे पिक्चर चल रही हो, या जिसके आगे मैं एक्चुअली अपना जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि वो गरीब हैं या वो पैसे नहीं है उनके पास, उसके बैकग्राउंड को अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है, ठीक है, सो आई कैन इजीली ब्रिंग माय कंप्यूटेशनल आर्ट्स इनटू दैट मैटर एज वेल. ठीक है. सोशल मैसेजेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. इवन कि आई थिंक जो आपने इमेजेस दिखाए दे कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजिंग, बिकॉज अब बड़ी ओवरलैपिंग आ रही है, बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को नॉर्मल जो आप समझते हैं जिस तरह जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है उसकी ओवरलैप से, और जो भी आपने इमेज दिखाया दैट कैन बी, जैसे फॉर इंस्टेंस दैट इमेज कैन बी यूज फॉर वो जो अब्यूज से रिलेटेड है या कुछ और के आप हिडन रखते हैं या कुछ और, तो यू कैन यूज टेक्स्ट विद दैट. डेफिनेटली दैट कैन बी यूज विद. बहुत ही मजेदार काम हो जाए और बड़ी ही डिफरेंट चीज है अगर इंटरेक्टिविटी भी रहे किसी ना किसी फॉर्म में, जहां आप कहीं टच कर सकें स्क्रीन को एग्जीबिशंस में या जिस तरीके से भी आप एडवर्टाइज करते हैं. आप बल्कि स्क्रीन के बारे में बात कर रहे हो, आप टच के बारे में बात कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं आजकल बच्चों को कहती हूँ कि पोस्टर्स हैव बिकम मूविंग ग्राफिक्स नाउ. एग्जैक्टली, वर्चुअल रियलिटी में इतना काम हो रहा है अब तो. वर्चुअल रियलिटी हो गया है. अभी आई वाज वाचिंग दिस वन न्यूज चैनल, उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी इस्तेमाल की हुई थी. एग्जैक्टली, ऑगमेंटेड रियलिटी ज्यादा यूज हो रही है. हाँ, एग्जैक्टली. एज अ डिजाइनर हमारा ये काम हो सकता है कि हम उसको डिजाइन कर लें, उसके एसेट्स जो हैं वो डिजाइन कर लें और हम किसी प्रोग्रामर को बिठा दें और वो हमारे लिए कर लें. एग्जैक्टली. एंड देन द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज नीड टू अंडरस्टैंड कि ये भी एक मार्केटिंग टैक्टिक है. एग्जैक्टली. और आप मॉल में जा रहे हो, आपको वो डायरेक्शनल चाहिए है, आप अपने सेल फोन पे कोई डायरेक्शन ढूंढ रहे हो. 2020 was the most eye-opening year, I would say, ठीक है, कि where all the galleries became online. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है. ठीक है, and this was all related to how the designers and how the computer people were working together. Exactly. So that's the biggest example for any new designers to come. बिल्कुल ऐसी है. मैं तो देख रही थी कि 3D जो आपके स्कल्पचर्स हैं उसके लिए वो डिफरेंट तरह की कह रहे हैं कि यू कैन टेल अस कि आपको कैसे डिस्प्ले करना है, यू टेल अस एंड वी विल डिस्प्ले इट लाइक 3D एंड यू कैन डू इट एज अ 2D एज वेल, जो पैरेलैक्स है यू कैन डू इट लाइक दैट. फिर आप उसमें वॉकवेज हैं जिसमें आप पूरी गैलरी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो मतलब एवरीथिंग, especially new media technology है, this is going to inform our design and our practice or whatever. It's going to inform everything actually, our whole life actually. And you were talking about the kind of experiences we are getting in this era, in new media technology era. And then the kind of, जैसे अभी हम देख सकते हैं कि जो experiences को आप translate कर रहे हो in different kind of visuals and different kind of images are coming out of that. So different kind of symbolism is coming out of that, which sometimes make meanings and which sometimes doesn't make any sense, but maybe over time it will make some sense. तो अब यही है कि और किस तरह की आपको लगता है कि बहुत हद तक अगर हम पुराने स्टाइल के नैरेटिव्स को देखें और अब के नैरेटिव्स को देखें, अगर आप खुद भी कंपेयर करो इन टर्म्स ऑफ योर इलस्ट्रेशंस या जो भी आप पहले आर्ट वर्क कर रहे थे, बहुत मेजर शिफ्ट कहाँ लग रहा है आपको कि बहुत हद तक स्टोरी टेलिंग ही सारी चेंज हुई चली जा रही है? स्टोरी टेलिंग अब एक्चुअली स्टोरी टेलिंग बन गई है. ठीक है, बिकॉज हर एक बंदे को ना आपने एम्पैथी लेकर, ठीक है, आपने उसको बोलना होता है कि ये चीज है जिसको अफेक्ट कर रही है.
ठीक है, ठीक है. सो वो इट हैज चेंज्ड. ठीक है, एग्जैक्टली, इट हैज एग्जैक्टली, चेंज्ड. एंड वही बात है, मैं जब भी थीसिस के स्टूडेंट से बात कर रही होती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि आगे के लिए सोचो. बिल्कुल ठीक है, You guys will be experimenting and you guys will be presenting to people of the future, not for today. एग्जैक्टली, So, जिस तरह आपने बात की ना कि चेंज होती जा रही हैं चीजें, और जो हमारे साथ पहले था वो अब बहुत completely different है. डिफरेंट है, देखो, फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफी बड़े अरसे तक हम सोचते रहे कि ये फाइन आर्ट्स है या ये डिजाइन है. बिल्कुल, ठीक है. सो बिल्कुल, फॉर न्यू मीडिया आर्ट्स, फॉर डिजाइन, मेरी एक पेट लाइन होती है, वो ये है कि डिजाइन इज एन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस. ठीक है, जहां पे आपको ग्रिड फॉलो करनी है. बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, एंगल्स फॉलो करने हैं. ठीक है, बिल्कुल, बट यू हैव द फ्रीडम ऑफ अ फाइन आर्टिस्ट एज वेल. बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, आपने बिल्कुल, वो एक सोफिस्टिकेशन देनी है अपने काम की. बिल्कुल ऐसे ही है, आपने वो एक कॉम्पोजिशन रखनी है अपने काम में. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है. सो अब ये वाली स्टेज आ गई है. मुझे लगता है कि वही कि एक जो लर्न प्रैक्टिसेस थी, एक खास तरीके से एक फॉर्म ऑफ डिजाइन है, ये जो भी आप निकाल रहे हैं, शेप्स हैं, फॉर्म्स हैं, जो भी एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन आप कर रहे हैं, नाउ यू हैव टू पुश द बाउंड्रीज टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स, दैट व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर. You can't Yes. just contain yourself in those particular form which you used to see or whatever. Now you have to push the boundary, you have to overlap everything. Actually, it's not just about art fields or like art design or architecture, whatever. You could explore medical field along with that, or any software Oh engineering, yes. or whatever. And another thing is जो भी आपने बात की कि लोगों से empathy gain करना, तो इसी में अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजिंग पर भी हमेशा एक ब्लेम भी आता रहा है. कई दफा ब्लेम गेम भी होती है, कि कई दफा सही भी होती है, कई दफा गलत भी हो सकती है, कि आपको उसके थ्रू जो है वो सबलिमिनल मीनिंग्स या कुछ इस तरह के मीनिंग्स दिए जाते हैं जो कि साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करते हैं. अब तो एनवायरमेंट्स ऐसे डिजाइन की जा रही हैं जो कि साइकोलॉजिकली आपको जो है वो आपकी वेलबींग की तरफ काम करे. क्योंकि अब आपकी जो सिटीज है उसमें जिस तरह की आपने अभी इमेजेस दिखाए, if they are displayed in a way in the city that they can create well-being of people in terms of psychological जो उनकी जो स्ट्रेस है उसको लो करने के लिए कुछ और, तो that can be played in that way as well. लेकिन वहां पर आपने ये भी देखना है कि कहीं आप स्ट्रेस क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं इमेजेस के. Yes, exactly. बहुत जरूरी है, इस चीज को आपने जरूर देखना है. और जिस तरह आजकल का वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है, अब आप लोगों ने खुद भी नोट किया होगा जब हमें मार्च में उन्होंने डिजिटल पे डाला, ठीक है, एवरीबडी वेंट मैड. एग्जैक्टली, क्योंकि आप हर वक्त फोन पे, हर वक्त कंप्यूटर पे थे. एग्जैक्टली, ठीक है. एंड वही बात है कि आपको वो एक पीस देना है, वो आपको एक आप मैसेज जरूर दे रहे हो, लेकिन आपको हैमर नहीं करना लोगों पे. एग्जैक्टली, ठीक है. और वो कंप्लीटली, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस एस्पेक्ट कि हमें जरूर देखना है ये चीज. बट वो बात है कि बाज दफा हम we have to get out of our comfort zone as well, Zareen. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बिल्कुल, we do have to do that. और जब तक वो हम नहीं करेंगे ना, हम अचीव नहीं कर सकेंगे कुछ भी. बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आप न्यू मीडिया का, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि न्यू मीडिया के साथ एक स्ट्रेस जो है वो एसोसिएटेड है. बिकॉज समटाइम्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एंड यू डोंट रियलाइज कि आप वहां कितनी देर बैठे हुए थे और आपकी आईज का क्या हाल हुआ है बाकी. तो मतलब यू गेट एंगेज टू मच इनटू दैट. एंड समटाइम्स आई थिंक जो कि क्रिएट करते हैं डिजाइन, मतलब उनको बताना चाहिए कि प्लीज आप उठ जाइए, उठ के जाइए और कहीं घूम के आइए और जरा वॉक कर लीजिए. इस तरह के सबलिमिनल मैसेजेस भी होने चाहिए कि थोड़ा सा. और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज कि आपको एक चीज और नहीं भूलनी है, मुझे जो बार बार जहन में आता है, आपको याद होगा कि जो विलियम मॉरिस है उसके बारे में यही है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है ब्रिटेन में भी, तो उसने यही बात की थी कि जो हैंडमेड ऑब्जेक्ट्स हैं और फिर एक तरफ आप वो कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं जो कि आप प्रोडक्शन, मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो जो हाथ का जो टच है जो आर्टिस्ट का या बाकी, उसको आप उसका बैलेंस ना छोड़ें. हाथ की बनी हुई क्राफ्ट को आपने वैल्यू करना. और आप देखें ये अभी तक है डिबेट, और ये बात बिल्कुल सही है. अगर आप बैलेंस रखेंगे तो आपका अपना जो साइकोलॉजिकल जो है ना कंडीशन वो ठीक रहेगी. क्योंकि हमें सेंस ऑफ टच
चूंकि इसमें आप नहीं कर पाते ना, तो वो कुछ आपकी स्ट्रेस ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। किसी को होल्ड करना या पकड़ना, हाथ से जो हम डिजाइन, आप लोग तो बिल्कुल ही मैनुअली डिजाइन करते रहे हैं ना, जो आप शीट्स के ऊपर बनाते थे और उसको जो बाद में प्रिंट करना, ये ज्यादा मैनुअल था। अब टेक्नोलॉजी के चक्कर में आप कैरिड अवे अगर हो जाते हैं टेक्नोलॉजी से, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा। उससे मैं आपको एक चीज जरूर दिखाऊंगी, थोड़ा सा you'll have to bear with me, I'll keep on going off and on. बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। When we were working for the 2018 pavilion, ठीक है, this is how we had to present to the people. अच्छा, ठीक है, कि जी ये मैन्युअली कैसे लगेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि जी ये जो हम बना रहे हैं सारा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको पहले हमें मैन्युअली बनाना पड़ा था। बिल्कुल। जिसको हम कहते हैं ना, आइडिएशन के बाद आप अपनी एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, आप उसको लेकर आते हो और फिर उसको प्रोटोटाइप पे जरूर लेकर आओ। बिल्कुल। ठीक है, एंड देन यू फाइनल एंड यू नो कम टू दिस, ऑल ऑफ दिस वर्क वाज डन देयर। सिर्फ सोच लेना बच्चे के लिए जरूरी नहीं है कि आपने सोच लिया और आप टीचर को फिराए कि मैंने ये कर लेना है। लेकिन ये सारा भी प्रैक्टिकल वर्क होता है जो बंदे को करना चाहिए। ठीक है, ये so you did a video projection on that, you did a video projection on this structure. बिल्कुल, so that was a balance of like, very beautiful. So they were like clothes, ठीक है, and we did a video production on that, and then जब आप नजदीक जाते थे तो there was a computational element. अच्छा, ठीक है। ठीक है, and it was a big thing कि जी हमने लंदन बिनाले में पाकिस्तान पवेलियन प्रेजेंट किया था। बिल्कुल, वेरी नाइस। और यही वाली चीज, जिस तरह बात ये है कि आई एम गोइंग टू टॉक टू पीपल अबाउट दिस, ठीक है, with the colors and with what I projected, I talked to the people ke how everyone is being affected. Exactly. ये बड़ा एनवायरनमेंट के पीसेस के टाइप से मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऐसी बड़ी हम एनवायरनमेंट्स में से गुजर रहे होंगे। क्योंकि अब तो बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स ऐसी हैं। एग्जैक्टली। एंड उसमें तो हमारा फिर जो मीडिया आर्टिस्ट है उसको तो दे हैव टू बी देयर ऑल द टाइम। बिल्कुल सही है। सो दे शुड एक्सप्लोर। और देखिए ना, बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इट्स नॉट कन्फाइंड टू वन डिसिप्लिन, सो यू हैव टू keep on pushing those boundaries, you have to overlap with other disciplines, आपको करने की जरूरत है। और वही बात है कि इसलिए मैं आपको न्यू मीडिया आर्टिस्ट एंड डिजाइनर बोल रही थी ना, नॉट जस्ट विजुअल आर्टिस्ट। वही बात है। एंड सारे के जो टाइम है उसमें आपको मेरे ख्याल में for your own survival you need to have interdisciplinary approach, otherwise आप survive ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आप नहीं कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल, एक सिर्फ मैनुअल पे रह जाना या सिर्फ टेक्नोलॉजी में या सिर्फ किसी एक डिसिप्लिन के साथ जुड़े रह जाना। बेटा, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैम से? क्योंकि वही बात है कि हम वही बात है स्टोरी टेलिंग से भी है कि डिफरेंट टाइप के, अभी ये जो बच्चे कर रहे हैं इसमें वीडियो प्रोडक्शन के बच्चे कुछ और, तो वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी प्रोडक्शन, क्योंकि अभी तो बिल्कुल स्टार्ट में इन्होंने शुरू किया है कि स्टोरी टेलिंग करते कैसे हैं और फिर कैसे कैमरा मूव से बाकी, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट तरह की इमेजरी है और जाहिर है कि वो कुछ और तरह के सिंबल्स भी हैं। जी बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं मैम से उनके काम के बारे में या कोई क्वेश्चन हो? जी जी पूछिए आमना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये कि जब आपका पोर्टफोलियो चल रहा था, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप ना ब्राइट कलर मतलब रेड येलो बड़ा यूज किया हुआ है। आमना, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे मुझे प्रॉपर्ली। आवाज थोड़ा ऊंचे बोलेंगे आमना, या अपनी माइक ऑन कर लें, ज्यादा ऊंचा कर लें। हाँ जी बताओ। मेरा क्वेश्चन ये कि अभी जब आपका पोर्टफोलियो आप शो कर रही थी ना, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि ब्राइट कलर्स यानी येलो रेड ना काफी यूज किया गया है। क्या स्पेसिफिक कोई बात है यूज करने की उसको?
I think I'm a happy person, that's why. Passionate being about work. नहीं आप ना एक ना पता है phases आते हैं different different, ठीक है. I had this time when I was just working in sepia colors, ठीक है. But with the passage of time, जिस तरह आप देखते हो, explore करते हो, आप वो देखते हो कि वो जो sepia tones हैं वो print में भी अच्छी नहीं आ रही हैं. ऐसा ही है. तो इसलिए हम फिर RGB tones में आ गए. हाँ. बिल्कुल ऐसे ही है. I think it was just my frame of mind, not realizing about it, but I guess it was just my frame of mind. But that's been my color palette somehow, if I look at it. और कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, कोई और? अब मुझे जाकर अपनी कलर पैलेट भी देखनी पड़ेगी. आमना ने मुझे कॉम्प्लेक्स में डाल दिया. अभी मैं आपको बताऊं मेरे बहनों, बड़ा अच्छा मजे का क्वेश्चन है. आपको पता है जब आई यूज्ड टू पेंट, मैं ये करती थी कि कलर को जब मिक्स करती थी ना और पेंट करती थी, मुझे लगता था कि मैं उसको ना कुछ मैला सा कलर कर देती हूँ और शायद ना मैं उसको मिक्सिंग ऐसे करती हूँ वो अर्दन टोन्स बन जाती हैं और पता नहीं क्यों ब्राइट नहीं है. अच्छा, बाद में जब मैंने कंप्यूटर पे काम शुरू किया तो आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग. मेरा ख्याल था कि शायद मैं पैलेट पे कलर मिक्स करते वैसे करी हूँ, बट एक्चुअली दैट वाज माय चॉइस ऑफ कलर. मुझे आई के साथ या मेरे माइंड को जो चीज एक्सेप्ट होती थी वो अर्दन टोन्स ही थी. मैं आगे तक अर्दन टोन्स ही करती रही हूँ. तो कई दफा वो आपका अपना परसीव करने का तरीका कि आपको क्या कलर अच्छा लग रहा है या क्या कलर पैलेट आपको अच्छी लग रही है. तो बिल्कुल हो सकता है कि वो तो वही बात है कि आप अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं कि फॉर योर पर्सनल रीजंस कि आपको क्यों पसंद है. बट व्हेन आई एम वर्किंग फॉर अ क्लाइंट और अभी जिस तरह पिछले साल एक मैंने बुक कवर किया था, ठीक है, डिजाइन, तो वो ऑफ कोर्स उसकी चॉइस थी कि ही नीडेड समथिंग लाइक इन ब्लूज, तो वो फिर मैंने ब्लू में ही किया था. ठीक है. When I'm working with for a client, yeah, when I have a brief, then yes. I think for my personal reasons, I do go for brighter colors or more colorful things, I guess. कोई और क्वेश्चन अच्छा, पूछना चाहते हैं? कंप्यूटेशनल आर्ट्स से मैं एक और रिलेशन में आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ. बात ये थी कि मेरे टेक्स्ट जो कंटिन्यूसली मेरे उसमें चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटेशनल आर्ट्स को मैंने कंप्लीटली यूज किया फिर साथ साथ विद कि हम इसको किस तरह देख सकते हैं, ठीक है. वही मैं बात कर रही थी कि हम जब कैलीग्राफी की तरफ आते हैं या जब हम उर्दू टेक्स्ट की तरफ आते हैं, हम अपने आप को रोक देते हैं, ठीक है. हम उसकी पॉसिबिलिटीज चेक नहीं करते. एग्जैक्टली. ठीक है. सो ये मेरी कंप्लीट एक्चुअली डायरी माई सेल्फ रही थी, ठीक है. दिस वॉज नॉट समथिंग जो मैं किसी क्लाइंट के लिए कर रही थी या किसी एग्जीबिशन के लिए कर रही थी. ठीक है. ठीक है. सो अब ये वाला जो था, so all these works, all these tasks जो मैं कर रही थी, they were with the Urdu calligraphy. ठीक है. ठीक है. I said कि okay, now I want to see, explore कि जी हमारा font या हमारी जो calligraphy की क्या कहेंगे approaches हैं जो हम नहीं करते. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मेहरबानों की, क्योंकि जब आप हम कोई शॉर्ट फिल्म कर रहे होते हैं कुछ और, तो हम उसकी स्टोरी बोर्डिंग करते हैं और फिर करते हैं कि अच्छा ये इस तरह से फॉर्म चलेगी और फिर उसके बाद बनेगा. जब आप अपना ये काम कर रहे होते हो कंप्यूटेशनल आर्ट में, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? स्टोरी बोर्डिंग से स्टार्ट करते हो और फिर उसके बाद उसके पीछे प्रोग्रामिंग डालना शुरू करते हो? ये किस तरह से होता है? या आप पहले देखती हैं कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज है, उसके मुताबिक स्टोरी बोर्ड को सेट करना चाहिए? ये क्या हो सकता है? कैसे चलते हैं आप इसमें? मैम जरीन, अभी हम इस एज पे कि वी कैन ब्रेक द रूल्स, है ना? बिल्कुल हमें इजाजत है. हमें इजाजत है. लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं इजाजत. हाँ ये ठीक है. हाँ ये हमारी राज की बात है. ये जिस तरह मैं बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स के लर्न द रूल्स फर्स्ट, ठीक है, एंड देन ब्रेक देम.
बिल्कुल। सो अभी आप जिस स्टोरी बोर्डिंग के उस पे जा रहे हो, दैट इज द एक्चुअल रूल जो हमने भी फॉलो किया है। ठीक है। ठीक है, वी नेवर सी द एंड प्रोडक्ट, वी हैव अ विजन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, बट वही बात है जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि जब हम लंदन डिजाइन बनाने के लिए भी काम कर रहे थे, तो वी लिटरली हैड टू मेक इट फर्स्ट। ठीक है, सो दैट वाज काइंड ऑफ माय स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बोर्डिंग। ठीक है, So बिल्कुल that सही है। storyboarding is important, and there's a और the storyboard को documentation of that, revisit। हाँ आप डॉक्यूमेंटेशन भी हाँ, कर रहे होंगे ना उसके साथ, या यू नीड दैट एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है, So बिल्कुल ऐसे ही है। those things are very important for any designer at this stage, ठीक है, when you're an academics, when you're a student। हाँ, मेरी जो स्टूडेंट्स करती हैं वीडियो प्रोडक्शन में या वीडियो आर्ट में जो भी काम करते हैं, तो मैं अक्सर जब प्रेजेंटेशन करनी होती है तो उससे पहले उनको कहती हूँ कि डॉक्यूमेंट भी करते जाओ उसको, जो प्रोसेस है आपका। जो तो करते हैं स्टोरी बोर्डिंग तो करते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट करना इटसेल्फ जो है ना, जो उसमें से निकलता है, वो आपको बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग देता है कि ये प्रोसेस हुआ कैसे, और यू कैन शेयर दैट विद अदर पीपल सो दैट दे कैन नो दैट व्हाट्स बीन डन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बिल्कुल। है क्या, वो तो मतलब खुद एक आर्ट फॉर्म है पूरी की पूरी। हाँ, उसमें आई वाज डूइंग दिस, मैं रिसर्च करती रहती हूँ ऑफ एंड ऑन, एंड आई डिस्कवर्ड कि व्हाट वी आर डूइंग टुडे becomes an archive for the future। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एंड वी ठीक है, शुड मेंटेन दैट। यस, ठीक है। सो आई थिंक वी, हाँ, कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसी पाकिस्तान में तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ऐसी कोई चीज ऑर्गेनाइज की जा सकती है कलेक्टिवली आर्टिस्ट एंड डिजाइनर्स के लिए कि एक आप आर्काइव बनाए इसके लिए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तो भी नेशनल लेवल पे एक्चुअली एक चीज होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली, वही बात है कि फॉर पीपल, for them art and design doesn't hold much space because we haven't done much for the society। बिल्कुल। ठीक है, बट हमने अपने लिए बनाया कुछ नहीं है, हाँ, हमने तो अपनी अपकमिंग काउंसिल में बनाई जो बनानी जरूरी थी। one day we will, Zareen, don't worry। इंशाल्लाह सून। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नहीं, this is very important now because I think we are going global as well. So we need to have archives so that other people could access that as well. बिल्कुल। वो फिर From like पाकिस्तानियत हमें ये जरूर चीज भूल जानी चाहिए कि ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ। exactly, ठीक है, you have to understand as Pakistani we have to be strong enough to say this is for my nation। exactly. And we have to contribute to art and design discipline, huh? Why we not? do we do we We do are have supposed to to. have that। बेटा कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मैम का काम काफी फर्क है, काफी डिफरेंट है, आप लोग तो इस तरह से नहीं करते, जाहिर है कि अभी तो वैसे भी मेन स्ट्रीम में इतना आया नहीं है इस तरह का काम, पाकिस्तान में इतना नहीं हो रहा डिजाइन में, कुछ चीजें होंगी लेकिन अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आया हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये कि आपके लिए एक नया फ्यूचर, या जैसे अभी हम ऑगमेंटेड रियलिटी और इस तरह की चीजों में जाना चाह रहे हैं कि हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब एडवर्टाइजिंग में आपको चाहिए होगा, इवन के हर तरह की अब एडवर्टाइजिंग में मुझे लगता है अब तो आना शुरू हो गया, हाँ, तो बहुत कॉमन बिल्कुल प्लेस हो रहा है ये, तो बिल्कुल। पीपल नीड टू लर्न दैट। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आगे जब आपने जाना है उसके लिए कुछ पूछना चाहते हैं? मैं मैम की बात पर आगे कंटिन्यू करूंगी। देखो बेटा, जब आप लोग सोचना शुरू करोगे, सबसे पहले वही बात है कि एक्सप्लोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हेन यू आर गिवन अ टास्क you have to break the boundaries but understand the rules and regulations। ठीक है, एग्जैक्टली, आप लोगों को सोचना जरूर आगे के लिए है। ठीक है, new media art is an upcoming field, and then you have to figure out the possibilities where you're going to use these things। ठीक है, client is going to be difficult। ठीक है, जिस तरह, but most of the time मैंने आपको ये भी बताया कि when I was working with an agency I kept drawing। ठीक है, I kept taking photographs for myself। So for us that is very important, and to have that journal कि यार आप कहीं पे जा रहे हो and you have photographs or you just write something, you can revisit it always। एग्जैक्टली। So that is a very important thing for you guys, and अभी तो आप लोग जो बेसिक्स कर रहे हो that is very important, but possibilities आप explore जरूर करो, लेकिन you know हाफ हाफ नहीं करो। अगर आप डिजिटल की तरफ जा रहे हो तो उसको जस्टिफाई करो पूरा।
अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो उसको जस्टिफाई करो। वो जो खिचड़ी बीच की बन जाती है ना कि पूरा काम नहीं कर सकते, दोनों फील्ड हैंगिंग रह जाते हैं, वो ना करो, ठीक है। बिल्कुल, yeah. सो क्लैरिटी रखो एंड यू नो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्लैरिटी रखो। बट मेन चीज ये है कि जो आपने अचीव करना है वो क्लियर रखो। बिल्कुल। यहाँ डिजाइन के स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो अभी तक वो डिजाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें ऐसी चीज जो आपको फील होती हो कि इसमें नई पॉसिबिलिटीज हैं जो कि एक्सप्लोर की जा सकती हैं। आई थिंक अभी तक तो वो और स्ट्रक है। जी 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 बेटा, कौन बोलना चाह रहा? सारा। जी जी, सारा क्वेश्चन करें। Assalamu alaikum, ma'am. I just वालेकुम want to सलाम। say this work, it's really impressive. Thank और you. मैं भी I'm from graphic designs background, so I always feel like we're always making posters and stuff like that, and that's nice, it's interesting. लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि mixed media है and different fields, you know, you're combining them, and I find that really interesting. I don't really have a question, but I just feel like this is something that I would want to do in the future, and I would also want to see your work in real life because it's हाँ, हम आपको रियल एग्जीबिशन कब देखेंगे? K22 में देख सकते हैं। हाँ इंशाल्लाह। और उसमें मैं, बल्कि आपने बड़ी अच्छी बात की ज़रीन, हमारी जो गैलरीज है ना, दे आर नॉट सपोर्टिव ऑफ दिस मीडियम। हाँ, दे लाइक हम आपको गैलरी भी दिखाएंगे जहाँ ये जाएगा। हम आपको वो भी बताने लगे हैं। बस सही है, क्योंकि उनको पसंद है कि स्कल्पचर हो जाए, ठीक है, या फिर वॉल पे आ जाए। और जो सोल्ड आउट हो जाए। That is another problem ना। तो वो जो लोगों की लर्निंग है, लोगों की थ्रू दिस मीडिया, जो कि लाइफ का पार्ट है, वो जरूरत नहीं। वो नहीं जरूरत है। But I think K20 is going to be very suitable for your work. अगर वहाँ जाए तो that would be lovely। अगर वहाँ आप participate करें, मतलब that is upcoming ना, शायद 22 में आ रहा है। हाँ, 2 में आ रहा है इंशाल्लाह। I think वो तो जो उसको क्यूरेट करने लगे हैं वही जो है वो न्यू मीडिया के माहिर है। कौन क्यूरेट कर रहा है? वो जो है वो कर रहे हैं फैसल, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो he will be one of my guests too इंशाल्लाह soon। इंशाल्लाह। Faisal is from Canada, yeah. हाँ, Faisal Anwar, he's working in those immersive realities and augmented realities, virtual realities, digital driven art forms. So आपको तो exactly fit in होता है, तो that would be lovely to see you work ना इंशाल्लाह। बिल्कुल। लेकिन ये कि बच्चों को कराची में होगा, ये भी बता दो। Maybe they will scatter it over the country or whatever। इंशाल्लाह, I hope so, I hope so। They can do that। बट इवन ये जो अभी जो फेस्टिवल हुए थे आर्ट की, यहाँ पर भी जो हुआ था, उसमें भी पॉसिबिलिटी थी। इस्लामाबाद की जो आर्ट फेस्टिवल हुआ था उसमें भी इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। वो बात है ना कि अब जो एग्जिबिटर है वो कहता है, जब वो गैलरी के पास जाता है तो वो सबसे पहले सवाल पूछता है कि आपके पास LCDs हैं, आपके पास प्रोजेक्टर्स हैं। हाँ, दैट्स प्रॉब्लम। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं, पर जाहिर है कि आप वो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आप सही कह रही हैं। सो वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग इतने अमीर हो जाएंगे कि हम अपने प्रोजेक्टर्स खुद ले लेंगे ज़रीन। हाँ, बट हम ये भी कर रहे हैं मेहरबानों, वी आर कुछ ऐसी हैं हमारी कोलैबोरेशन हो रही है कि जिसके बीच में इस तरह की गैलरी की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो विल बी डूइंग समथिंग टुगेदर इन दैट। इंशाल्लाह हम वीडियो आर्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ भी यही होता है। क्यों आपके वाले तो मतलब बहुत जबरदस्त काम है। वी कैन फाइंड आउट गैलरीज फॉर दैट, और डेफिनेटली इसको करेंगे सपोर्ट इंशाल्लाह जल्दी। अब तो मेरे ख्याल में इट्स द टाइम ना कि वी शुड डू दैट, और पाकिस्तान को बड़ी जल्दी लीड ले लेनी चाहिए इसके बीच में। Exactly. I think so. ले लेनी चाहिए, लेकिन वो बात है कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स भी बहुत है, हमारे पास वो फाइनेंशियल बाज़ दफा चीजें भी नहीं होती हैं। अच्छा मेहरबानो, आप ये कह रही हैं तो मुझे ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। आप तो NCA में हैं, इतनी अच्छी गैलरी आपके पास। ये तो हमें कहना चाहिए जिनकी गैलरी कोई नहीं और रोते रहते हैं प्लीज गैलरी बना दे, और हमें तो कोई कुछ समझता नहीं कि गैलरी क्या होती है भाई। हाँ, वो क्या होता है एग्जैक्टली।
साइंस की लैब मांगो आप। एनसी मतलब आर्टिस्ट को क्या करना है, इसमें क्या करना है ऐसे। लेकिन ये कि कम से कम एनसी में तो बहुत अच्छी गैलरीज है, लेकिन शायद इक्विपमेंट लैक कर रहा है या बाकी चीजें, लेकिन स्पेस तो बहुत अच्छी है आपके पास। वो हम इंशाल्लाह करते हैं, यू नो वी हैव डन एग्जीबिशंस एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट वो अभी थोड़ा सा होल्ड पे आ जाता है, कुछ ना कुछ हमारा प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, पता कंस्ट्रेंट्स है, हैं। हाँ नहीं जरीन आप सही कह रहे हो, क्योंकि हमारा जब थीसिस डिस्प्ले होता है ना, तो ठीक है। उसके लिए फिर व्हेन वी यूज दैट, तो वापस उसको रिस्टोर करना इज इम्पोर्टेंट, तो वो प्रॉब्लम रहती है हमारी हमेशा। हाँ ये है, हाँ ये क्योंकि है। वो थीसिस के लिए आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारे पास स्पेसेस ही नहीं आती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ, नहीं, बट इन इंशाल्लाह। टर्म्स ऑफ गैलरीज या स्पेसेस या आउटर स्पेसेस या पब्लिक स्पेसेस, मतलब जहाँ ये काम जाना चाहिए जिस तरह की जगह पे, उसके लिए स्पेस बननी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जो आपकी एडवर्टाइजिंग की फील्ड है या बाकी जो है जितनी भी, डिजिटल, उसमें तो डेफिनेटली अब ये अप्रोच चाहिए। और ये बच्चों को हम इसीलिए, फैरन हम आप लोगों को इसीलिए दिखा रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, एंड यू शुडंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू जस्ट पोस्टर डिजाइन एंड कैंपेन डिजाइन एंड अदर थिंग्स। सोशली आप क्या करते हैं, आप पब्लिक स्पेस को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, आप टोटली जो है ना अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। आर्ट एंड डिजाइन, इट्स वेरी पावरफुल थिंग, वेरी वेरी पावरफुल थिंग। अब मैं एक और जाते जाते आपको एक लास्ट 2 चीजें दिखाती हूँ, ठीक है। जब when we were working for the लंदन बिनाले का जब हम काम कर रहे थे ना, सो उससे पहले ऑफ कोर्स बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई थी, ठीक है। ठीक है। सो उसमें ये एक वीडियो थी। अब फॉर एग्जांपल बेटा, आप अगर अपना क्लियर नजर आ रहा है? जी हमें तो आ रहा है। ओके। अब हाँ ये बहुत नाइस है। इस तरह की हम चीजें ला सकते हैं, इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। स्पीड ऑफ कोर्स इसकी ज्यादा तेज है, ठीक है, बट इमेजिन करो ये आपके डिजिटल पोस्टर्स बन जाए, ठीक है। ये तो खैर मेरा एक डिजिटल वर्क था दैट आई वाज वर्किंग ऑन, ठीक है। वही बात है, ग्राफिक डिजाइन के बाद आप जब नए मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दीज आर जस्ट रेंडरिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट, but you know something like this can be definitely used. Exactly. It is very nice. So इस तरह की possibilities देखोगे, but वही बात है, मैम की बात is absolutely right कि हम जब aware होंगे तो आप definitely possibilities निकाल सकोगे आगे। बिल्कुल, जब तक आप देखोगे नहीं, एक्सपोज ही नहीं होगे इन चीजों से, तो हाउ वुड यू नो कि व्हाट्स बीइंग हैपनिंग। क्योंकि लास्ट टाइम मुझसे बच्चे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, कंसेप्चुअल आर्ट पे था, बाकी तो वो कहते कि मैम यहाँ तो होता नहीं। मैंने कहा बेटा आपने अगर नहीं देखा हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता, पाकिस्तान की बहुत गैलरीज में अब बहुत ज्यादा हो रहा है। इट्स वेरी कॉमन प्लेस नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन स्टूडेंट्स नीड टू हैव एन एक्सपोजर। सो अब कोविड टाइम्स पे हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू हम बुलाएं आप जैसे अच्छे विजुअल आर्टिस्ट को, न्यू मीडिया आर्टिस्ट को, जिनका काम देखें। और जाहिर है कि हमने तो कभी देखा ही नहीं है, जो मतलब वी डोंट नो दैट दिस काइंड ऑफ वर्क एग्जिस्ट, हाउ वुड वी नो, ठीक है ना। और वही बात है कि अगर आपको लंदन बिनाले में मौका मिल रहा है और यहाँ नहीं मिल रहा, तो यहाँ की पब्लिक और यहाँ के स्टूडेंट्स तो बेचारे एक्सपोज ही नहीं हो पा रहे, और आप एज एन आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। So I think this is another way of exposing your work to the students, that they should know that this is being done in Pakistan. It's not something that we can't do. Yes. Or I would definitely say कि you know make it into a habit guys कि 1 घंटा जरूर निकालो to figure out what's happening in the world. Exactly. ठीक है। Very Google nice. सर्च करो where you 30 seconds में आपको information मिल जाएगी। अब न्यू मीडिया के बारे में हो, ठीक है, डिजाइन के बारे में हो, just go and see the trends, just go see portfolios of people, not to copy them, just to get an inspiration. ठीक है, सबसे पहले यही प्रॉब्लम होता है। नहीं वो हमारे पास तरीके हैं प्लेजरिज्म निकालने के। मैंने बच्चों को पहले बता दूं बेटा देख ले, मगर प्लीज कॉपी मत कीजिए। पता है मेरे साथ बड़ा मसला था जरीन, ये मुझे लोग कहते थे डेमोन्स्ट्रेट करें, आप उनको एग्जांपल्स दिखाएं। मैं कहा जब मैं उनको एग्जांपल्स दिखाती हूँ तो वो वही वाली चीज करके ले आते हैं। ये बड़े बड़े से ये प्रॉब्लम था। फिर हमने सोचा कि नहीं अब हौसला करके दिखाना शुरू कर दे, तो बच्चों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये कि यहाँ पर ये है ट्रेंड, क्योंकि
एक्सपोजर कम होने से। आपको जितना एक्सपोजर मिलता है यू गेट मोर आइडियाज एंड देन यू कैन वर्क मतलब इजीली, जो कि स्टूडेंट्स के लिए फिर एक्सप्रेस करना आसान है, वरना उन्हें समझ नहीं आती कि अच्छा शायद यही बेस्ट फॉर्म है जो कि आर्टिस्ट की इसके बाद कुछ हो नहीं सकता। अब ये पता नहीं आपकी रिकॉर्डिंग में मैं बोल तो रही हूँ, आप बेशक डिलीट कर देना, बाथरूम में बैठ के सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। और मैं आपको बताऊं कि वो जो दूशान का जो पीस था, वो जो उसने यूराइनल उठा के रखा था और वो आपका दिमाग खोल देता है, वो बिल्कुल यही है कि टॉयलेट या बाकी जो भी जगह है, कोई स्पेस नहीं है इसके लिए कि आपको कहाँ आइडिया आएगा। मतलब ये कि आपको ब्यूटिफिकेशन वाला नहीं है कि मैं जाके बाहर सीनरी में बैठ के कुछ सोचूंगी तो कुछ अच्छा आएगा। आप जहां भी हैं और जिस तरह का भी आइडिया आपको आ रहा है, तो मतलब आर्ट के साथ कोई ऐसी कोई स्टैटिक्स में ब्यूटी उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। मतलब हर तरह की चीजें, डिस्गस्टिंग चीजें भी हो सकती है। तो मार्शल डूशा जो हमारे फादर ऑफ डाडाइज्म है, वो ये कर चुके हैं। तो हमारे लिए तो कंसेप्चुअल आर्ट में सबसे अच्छी मिसाल उन्हीं की है। उन्होंने तो जनरेट किया है सारे आइडिया को कि नहीं, एंड डेफिनेटली एक और चीज मैं जरूर अपने नए अपकमिंग जनरेशंस को बोलूंगी कि फॉर एग्जांपल द अदर डे आई हैड टेकन माय सिस्टर टू द माल रोड, ठीक है, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, वो अपना कोविड टेस्ट कराने गई हुई थी, एंड आई रियलाइज्ड कि माल रोड रावलपिंडी फॉर एग्जांपल, ठीक है, दे हैव चेंज्ड एवरी सिंगल बिल्डिंग। अच्छा, एंड व्हेन आई लुक एट दैट आई कैन नॉट से कि जी इस एरा का आर्किटेक्ट मैं नेम नहीं कर सकती, ठीक है। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा, हम जब बड़े हो रहे थे तो हम 60s के घर देख रहे थे ना, एग्जैक्टली, ठीक है, एंड वी कुड प्लेस इट इनटू अ एरा कि यार ये इस एरा का आर्किटेक्चर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो समहाउ हमें अपनी एक पहचान जरूर बनानी है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ठीक है। फॉर यू गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैं एक और इंटरव्यू में मैं बात कर रही थी कि वी वर वेरी यंग, ठीक है, 47 से 76 तक का बहुत जो था ना छोटा टाइम था। वी हैड अ लॉट ऑफ वी कैरीड पार्टीशन विद अस, बट यू गाइज आर आजाद, ठीक है। यू गाइज हैव टू ओन दिस थिंग and you guys have to create your own identity as Pakistanis. That's very important. बिल्कुल सही कह रही हैं। और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं मैम से, या हम वाइंड अप करें सेशन को? मैम सब कहेंगे वाइंड अप करें। वो बोलेंगे नहीं आपको, लेकिन दिल में खामोशी जो है उसका मतलब हाँ ही होता है। जी, थैंक यू सो मच मेहरबानो फॉर शेयरिंग योर वर्क, जो कि हम कभी नहीं देख सकते थे जब तक कि हम आपको बुलाते नहीं। So it was really wonderful to have you on this talk session. और इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी बुलाते रहेंगे, डिफरेंट और स्टूडेंट्स के साथ भी they need this kind of exposure as well. तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Zareen. Thank you everyone for having me, for listening to me. And we all need to be, sharing, and sharing is very important for all of us. Exactly. Sharing is caring. Yes, it is. It is. Okay. And if you guys need anything, you let ma'am know. And ma'am और हमारे साथ तो बहुत पुराना बचपन के दोस्त हैं हम लोग। बिल्कुल सही है, एनसी वाले ज्यादा बचपन की दोस्त होते हैं। हाँ, मेरा तो ये आपके फातिमा जिन्ना के साथ तो बहुत पुरानी एसोसिएशन है। बिल्कुल। मैं अमरीन के बारे में बोलती हूँ, मैंने कहा अमरीन हम तो पूरे बुड्ढे भी साथ हो रहे हैं लगता है मुझे। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है ना, सो गुड लक एंड मेक अस प्राउड एवरीवन। Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay, see you. Take care. Take care. Thank you.